Okay, so we are going to start with statistics. So basically, it is very now. Basically, it is said that lies, more lies, and statistics. So whenever you have to hide the truth, you may want to use statistics. So as a management aspirant, you may require it. Of course, I mean, that's jokes apart, but yes, it is a very, very useful tool to predict certain things. डिस्टर्ब मत करो, इधर आ जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ. कहीं भी मतलब मुंह ना चलाओ तो कहीं बैठ जाओ. now there are two things that we need to really test in statistics. अगर ध्यान से सुनोगे, फास्ट समझोगे तो 1 घंटे का, और नहीं तो फिर 1.5 घंटे का. अब there is statistics. Basically we measure two things. We measure something known as a central tendency. So central tendency of what? Central tendency of the data. So what do you mean by central tendency of a data? You see, you will be coming across huge amount of data. Data set, बहुत सारी data set आपको सामने आने वाली है. पर उस data का sense अगर हमें करना है, you want to make some sense out of that data, then you must have a single value which is representing the entire data. For example, if I want to figure out what is the academic standard of this class, say for example, I may ask you, tell me your scores. तो किसी ने मुझे 80 बताया, किसी ने 50 बताया, किसी ने 40 बताया, किसी ने 90 बताया. So I am once again puzzled. I have no clue as to what the class is. So I will use a central tendency. That means I will try to figure out one value which can best possible represent the entire data set. So one of the most common and the simplest method is what we say arithmetic mean, or more common terms what we say average. So what I'll do is I'll find out the average marks of this class. And let's say I find out the average marks of this class is 75. So I will tend to make conclusions on the basis of that. So I will start feeling that, 75 marks on an average. So the class looks good, nice, or they are intelligent. Let's say I take average marks of other class, they have 50 marks or 65 marks. Then I'll start thinking, okay, with respect to this class, that class may be weaker, right? So I am able to make some sense of the given data. That is the basic purpose of statistics, right? So that is the basic essence when I'm saying it is, we want to really measure a central tendency of a data. So that is the central tendency of the data. However, there are different ways of measuring central tendency because not every method is accurate in all the cases. For example, there are two students and one student is having 100 marks and one is having 0 marks. And I want to make analysis of these two people. So I may take an average as 100 plus 0 divided by 2 as 50. And I may assume that both are equally bad or both are equally good. But the matter of the fact is that one of the student is exceptionally good and one of the student is exceptionally poor. Therefore, the averages, are best. Averages will best describe a data when the data is in substantial numbers and the data is close, relatively close to each other. At that point of time, our way of finding out central tendency using arithmetic mean or average is best suited. So the first method that we are studying is what we call as arithmetic mean. So how do you find arithmetic mean? You basically find arithmetic mean by taking the sum of the values divided by number of values, which we also say average. From here, we may also get sum of the values by taking arithmetic mean into number of values. So we have studied this in average, right? Average is equal to sum upon number. From this implies sum of the value can be taken as average into number, or number of values can be taken as sum of the values divided by the average quantity. Obviously, this is just a readjustment of the formula, no big deal. Now, this
Generally, arithmetic mean is also represented as x bar. X bar is sum of the values divided by number of values. To write it more sophisticatedly, इनमें थोड़ा सा अच्छा लगे तो हम इसको summation xi बोल देते हैं और I की वैल्यू is moving from 1 से लेके n तक. इसका मतलब है I की वैल्यू 1 है, this will be divided by number of values. तो ये मेरा x बार जिसको हम बोलते हैं या अर्थमेटिक मीन, सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइड by ये it is nothing but representation of x. I की जगह 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, so on and so forth. So that is the meaning of x बार. और है इधर नहीं आयोटा, यहाँ पे एक नंबर है, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. वो आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है, रूट ऑफ -1 जिसको बोलते हैं, वो इमेजिनरी नंबर. यहाँ पे इट हैज नथिंग टू डू विद इमेजिनरी. इट कैन बी एनीथिंग. इट कुड बी, लेट अस से मैं i की जगह p कर देता और लिखता p is equal to 1 से लेके n तक. But this is standard nomenclature I, so everybody uses I, so we also use I. That's it. That is one of those central tendencies. The other central tendency that we have is what we call as geometric mean. ठीक है, तो geometric mean क्या होता है? यहाँ पे sum of the values होता है divided by number of values. Geometric mean is given as nth root of product of n terms, यानी x1, x2, x3 so on till xn. तो मान लेते हैं हमारे पास दो वैल्यूज हैं, तो अर्थमेटिक मीन क्या बनेगा? a प्लस बी अपॉन 2 बन जाएगा. ज्योमेट्रिक मीन क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ ए बी बन जाएगा. मान लेते हैं तीन वैल्यूज होती तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 बनता अर्थमेटिक मीन. लेकिन ज्योमेट्रिक मीन क्या बनेगा? क्यूब रूट ऑफ a इंटू बी इंटू सी. इस तरीके से बनेगा. ठीक है, तो a b c 4 होता तो फोर्थ रूट बन जाता. इसको हम ज्योमेट्रिक मीन के नाम से जानते हैं. तो समटाइम्स इट मेक्स सेंस दैट वी आर यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन एज आवर सेंट्रल टेंडेंसी. देन वी आल्सो हैव व्हाट वी कॉल्ड एज हार्मोनिक मीन. तो हमारे पास एक चीज होती है हार्मोनिक मीन. तो हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द गिवन वैल्यूज. मान लेते हैं हमारे पास गिवन वैल्यू a और b है, तो हार्मोनिक मीन क्या होगा? इसका पहले रेसिप्रोकल लो, रेसिप्रोकल का अर्थमेटिक मीन बनाओ, जो रिजल्ट आए उसका रेसिप्रोकल ले लो. तो इसलिए बोलते हैं इसलिए रेसिप्रोकल, रेसी यानी उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ किसका? अर्थमेटिक मीन का. अर्थमेटिक मीन किसका? रेसिप्रोकल्स का. कौन सी वैल्यूज रेसिप्रोकल्स? जो वैल्यू गिवन है. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 बाय ये क्या बनेगा? a प्लस बी प्लस 2ab, और ये ऊपर आ जाएगा तो ये बनेगा 2ab अपॉन a प्लस बी. तो अगर मेरे पास दो वैल्यूज हैं a और b, तो उनका हार्मोनिक मीन 2ab बाई a प्लस बी बनेगा. उसी तरीके से मान लेते हैं मेरे पास abc होता, तो इसका हार्मोनिक बन जाता 3abc डिवाइडेड बाई ab प्लस bc प्लस ca. यही बनता. कैसे बनता? 1 बाई a प्लस 1 बाई b प्लस 1 बाई c डिवाइडेड बाई 3, और जो भी रिजल्ट आता फिर उसको उल्टा कर देते, तो ये हमारा हार्मोनिक मीन बन जाता है. आ रही बात समझ में? तो ये ज्योमेट्रिक मीन है, ये हार्मोनिक मीन है. उसके बाद हमारा आता है मीडियन और मोड. व्हाट इज मीडियन? समटाइम्स मतलब अलग ही आएगी, अलग ही आएगी. In fact, there is a relationship which exists between all these three. Arithmetic mean is greater than or equal to geometric mean, which is always greater than or equal to harmonic mean. The equality will happen when the values are same. मान लेते हैं a is equal to b है, मान लेते हैं अपन दो वैल्यू ले लेते हैं, 2 और 3 ले लेते हैं. मान लेते हैं इसका अगर अपन अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो 2 प्लस 3 अपॉन 2 बनेगा, यानी कि 2.5. तो ये देखो ये 2.5 आ जाएगा. अगर इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 6 बनेगा. तो अंडर रूट ऑफ 6 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बनेगी, अगर हम 2.5 ले लेते हैं 2.5 तो 6.25 बनेगा, और अगर हम 2.4 ले लेते हैं तो 24 का स्क्वायर कितना बनता है? 576, 575.76. लगभग इन दोनों के बीच में आएगा, 2.5 और 2.4 के बीच में. सो आई मे वांट टू टेक 2.45 अप्रोक्सीमेटली. तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.45 आ जाएगी. तो ये मान लेते हैं 2.45 के आसपास आ जाएगा. इसका अगर हम हार्मोनिक मीन लेंगे तो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 ये बनेगा. तो ये मेरी वैल्यू बनेगी, कितनी बन गई? 4 3s are 12, 12 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 2s are 10 and 5 4s are 20. So this value is 2.4. So if you observe, this is 5.0
So you see arithmetic mean is always greater than इस case में it is greater because their values are different. So this is a standard result which exists between AM, GM and HM. But if the values are same, for example, A और B की value हम 2 ही डाल देते हैं, तो arithmetic mean अगर हम देखेंगे तो 2 + 2 divided by 2 वापिस 2 आ जाएगा. अगर हम इसका ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे तो √2 × 2 वापिस 2 आ जाएगा. और अगर हम इसका हार्मोनिक मीन देखेंगे तो 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2. ठीक है, तो ये 4 और ये 4 खत्म हो जाएगा तो वापिस 2 बचेगा. उस केस में देयर एग्जिस्ट इक्वालिटी. सो दिस इज द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन AM, HM एंड GM. ठीक है. And you can also see one more thing, that geometric mean ka square will always be AM into HM. For example, if you see arithmetic mean of two values was A plus B by 2, geometric mean was √AB and harmonic mean was 2AB by A plus B. यही था मेरे पास. Let us say we are multiplying these two values. That means AM and GM. So what do we get? A plus B divided by 2 into 2AB divided by A plus B, right? A plus B goes here, this goes. I am getting AB. Which is, if you look carefully, this is arithmetic mean and this is harmonic mean. So we are getting geometric mean ka square. This is another result which you can remember and understand. The product of arithmetic mean and harmonic mean is nothing but the square of geometric mean, right? So these are the relationship that may exist between all these AM, GM and HM, right? Then sometimes another way of understanding the entire data set is what is called as median. So the word median we have already studied in geometry, that it is the line which will divide your, it's a point that will divide your line into two equal parts, right? So median is also a point which will divide the entire data set into two equal parts. So how do we decide how do we divide the data set into AN? AN ही है ये. हाँ मतलब ठीक है, मेरी लैंग्वेज में, कोड लैंग्वेज में ही समझ लो. ठीक है. तो मीडियन को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो भी डेटा होता है या तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं. असेंड का मतलब होता है बढ़ना, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू, उसके बड़ी वैल्यू, सो ऑन एंड सो फोर्थ. डिसेंडिंग का मतलब होता है घटना, तो डिसेंड करने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, उसके बाद वैल्यूज कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग, दैट इज नोन एज अ डिसेंडिंग ऑर्डर. तो लेट अस जस्ट टेक सम रैंडम एग्जांपल, और वन एग्जांपल मान लेते हैं हमने इसको दिया, व्हाट इज द मीडियन. हमारे पास एक क्वेश्चन है 3, 7, 12, 16 एंड 22 मान लेते हैं. ठीक है, ऑलरेडी दिस इज ऑलरेडी इनटू एन असेंडिंग ऑर्डर. मान लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ता. नाउ इन दिस सी देयर आर हाउ मेनी नंबर्स, ऑड नंबर्स आर देयर. So it is always easy to figure out one value that will divide the data set into two equal parts, because if you find, we need to basically find middle value. So since there are 5 terms, so 5 plus 1 divided by 2, the third term will be always the middle value. So if there are n terms, so n plus 1 divided by 2th term will be the median. This will be the median when the numbers are, when n is odd. If number of terms are odd, ये तब होएगा जब n की वैल्यू ऑड हो जाएगी. तो अब देखिए 12 जो है वो मिडल में है, क्योंकि 5 वैल्यू है तो 2 लेफ्ट साइड में 2 राइट साइड में. मान लो 7 वैल्यू होती तो 7 plus 1 by 2, fourth value would be the middle value, because there would be 3 value on the left hand side of the fourth value and there will be 3 values which is on the right hand side of the fourth value, and therefore you will get a median which is n plus 1 by 2. Now there's a case, let us say we are having another example where the number of values are not odd, मतलब even number of values हैं. मान लेते हैं हमारे पास आ गया 4, 5, 9, 11, 14 and 15 for example, right? So if you were to look at this value, there are 6 terms. Now in 6 terms you cannot have a value which will divide into 2 equal parts, so there will be a line which will somewhere lie between third and fourth value. So how do you really figure out what is the median in such a scenario? So what you do is you find out 2 terms, because there will be always 2 middle terms which will
which will have equal terms on the left hand side and equal terms on the right hand side. अगर odd होता तो there would be one specific term from which you will see right hand and left hand will have same number of values. But in even number of cases, you cannot take a single value. You'll have to take central two values. So how do you identify central two values? First way is first value will be n by 2th term, and the second would be n by 2 plus 1th term. So in case I am having 6 term, so 6 by 2, this is third term, and the next would be 3 plus 1, yani fourth term. So this third term and fourth term, kaun si value 14, 11. So this third term and fourth term is my median. But since I told you central tendency means single value, so basically I will take third term plus fourth term ka average. That means 9 plus 11 by 2, which is 10. So I will consider my median to be 10. So median इसके अंदर तो median बनेगा वो nth term plus n plus 1th term divided by 2. That is the median for even number. Of course, it goes without saying that you will have to arrange either in ascending order or descending order. That is how you do it. आ रही बात समझ में यहाँ तक? इसके बाद आता है हमारा मोड. What is mode? Mode is frequency. जिसकी frequency सबसे ज्यादा होती है हम वो मान लेते हैं कि that value is representing the entire data set. It is same as saying मान लेते हैं क्लास का टाइमिंग सेट करना है, किसी की कभी कॉलेज है किसी का कभी कॉलेज है. You cannot adjust everybody's timing. So what do we do? ये सबसे पूछ लेते हैं. तो ज्यादातर बच्चे जो उस टाइम को बोलते हैं नहीं भाई वही है बाकी लोग एडजस्ट करो. It helps in taking a decision. So in a particular data set, if the value is being repeated maximum number of times, we assume that that value is representing the entire data, and that is known as mode. तो यानी जिसकी frequency सबसे ज्यादा होती है, जिसका observation सबसे ज्यादा बार आता है, वो हमारा mode बन जाता है. ठीक है. क्लियर है यहाँ तक? तो मान लेते हैं हमारे पास वैल्यू है 2 1 4 2 6 4 3 2 8 2 2. ठीक है. 1 4 6 7. सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 2. 1 2 3 4 5. तो 2 जो है वो 5 बार आ रहा है, बाकी सब कम बार आ रहे हैं, तो इसकी मोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. अगर मान लो दो वैल्यूज हैं जो सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है तो दोनों उसका मोड माना जाएगा. ठीक है. और अगर सबकी सेम ही फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब मोड इज नॉट डिफाइंड. बेसिकली मान लेते हैं सारे डिस्टिंक्ट है तो उसमें मोड का कोई कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं. ठीक है. देन देयर इज एन एम्पेरिकल फॉर्मूला which relates mean median mode. What is the relationship between mean median mode? So mode is equal to 3 median minus 2. अब इसका ये एम्पेरिकल है. एम्पेरिकल का मतलब है, हाँ मोड तो लिखा ही हुआ है. एम्पेरिकल का मतलब है ये अप्रोक्सीमेटली ट्रू है. इट इज नॉट नेसेसरली एन इक्वेशन. ऑफ कोर्स if the values are same, where the values are close, then you will get this. But it is just an empirical. Basically it means मान लेते हैं हमारा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला के पानी बनता है. तो व्हाट वी आर सेइंग इज हाइड्रोजन और पानी को इकट्ठा कर देंगे, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इकट्ठा कर देंगे तो पानी बन जाएगा. बट दिस इज नॉट एन बैलेंस्ड फार्मूला. इट इज जस्ट एन एम्पेरिकल फार्मूला. क्योंकि अगर आप हिसाब किताब बिठाओगे तो 2 हाइड्रोजन है बट 2 ऑक्सीजन है. यहाँ तो एक ही ऑक्सीजन, तो एक कहाँ गया? उसके लिए आप बैलेंस करते हो. मान लो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 ऑक्सीजन हो गया, तो ये बैलेंस हो गया. लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया, तो हाइड्रोजन 4 हो गया तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते थे. ये बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बोलते थे. तो बैलेंस्ड इक्वेशन है, और जो पहले लिखा था वो एम्पेरिकल इक्वेशन है. तो एक एम्पेरिकल इक्वेशन है. अप्रॉक्सीमेटली यू विल गेट द वैल्यू, बट इट इज नॉट दैट यू आर गोइंग टू गेट एग्जैक्ट मीन मीडियन. पता है तो आप एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, ऐसा नहीं है. ये बात समझ में आती है? तो दीज आर व्हाट वी कॉल्ड एज सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो जब हम सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करते हैं तो हम ये भी मेजर करना चाहते हैं कि जो हमने सेंट्रल टेंडेंसी एज्यूम करी है या जो हमने सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया है, जो बचा हुआ डेटा है वो उससे कितनी दूर है, उसका छिटकाव कितना है, सो एज टू फिगर आउट आवर एक्यूरेसी ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी.
तो मान लो मैंने कहा कि एवरेज मार्क्स ऑफ दिस क्लास इज 75, फिर मैं देखूंगा कि 75 के पास कितने ज्यादा लोग हैं या छिटकाव कितना है, क्या 0 वाले भी हैं, क्या 100 वाले भी हैं, या फिर कुछ लोग 80 से 70 के बीच में हैं। तो उसको मेथड ऑफ डिस्पर्शन बोलते हैं। डिस्पर्स यानी छिटकाव। किसका छिटकाव? उस डेटा का छिटकाव उस सेंट्रल टेंडेंसी से कितना है, दैट इज नोन एज मेथड ऑफ डिस्पर्जन। तो सबसे सिंपलेस्ट जो मेथड ऑफ डिस्पर्जन होता है वो होती है रेंज। मान लेते हैं आप कहीं जाते हो दुकान में, आप बोलते हो शर्ट दिखाओ, तो सबसे पहला सवाल क्या बोलता है? किस रेंज में दिखाऊं? तो अगर आपके मन में 1500 की रेंज होती है तो उसको क्या बोल के आते हो? बोलते हो 1000, 1500, 2000, कुछ भी दिखा दो, पसंद आ गई तो ले लूंगा। दिमाग में आपके एक वैल्यू सेट है, लेकिन आप उसको एक रेंज दे देते हो ताकि वो उस प्राइस से कम भी दिखा दे, उस प्राइस से ज्यादा भी दिखा दे। अगर आपको लगता है कि भाई रेट कम है बट पसंद आ गया तो आप सस्ते में भी ले लोगे, लेकिन आपको लगता है भाई नहीं समझ में आ रहा और महंगा मिल रहा है बट अच्छा लग रहा है तो आप कुछ महंगा भी ले लोगे। तो एक उसको रेंज प्रोवाइड कर देते हो। तो रेंज आइडेंटिफाई करने का जो सिस्टम होता है वो होता है हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो अगर हमारे पास जो भी डेटा सेट है, अगर हम उसको उसकी रेंज निकालनी है तो हम हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करेंगे तो हमारा रेंज निकल जाएगा। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? हमारा मेथड ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब है फैलाव, छिटकाव। तो सबसे पहला जो सिंपलेस्ट होता है वो होता है रेंज। तो रेंज सिंपलेस्ट वैल्यू है, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू विल गिव यू रेंज। हाईएस्ट वैल्यू मान लेते हैं, लोएस्ट वैल्यू। उसके बाद एक आता है क्वार्टाइल डिविएशन और एक आता है मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, क्वार्टाइल डिविएशन का क्या मतलब होता है? यहां तक समझ में आ रहा है? रेंज। उसके बाद आते हैं क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल वर्ड कहां से आता है? क्वार्टर से। क्वार्टर का मतलब हुआ पाइया। ओके। तो अगर हमें एक डेटा को 4 क्वार्टर में डिवाइड करना है तो कितने कट मारने पड़ेंगे? 3 कट मारने पड़ेंगे। तो 3 कट मारेंगे तो हमारा जो डेटा है वो 4 क्वार्टर्स में डिवाइड हो जाएगा, 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। इसको क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 3 बोलते हैं। ठीक है, यानी एक ऐसा पॉइंट जो डेटा को पहले 1/4 हिस्से में बांट दे, ये वो पॉइंट है जो 2/4 हिस्से में बांटता है, ये डेटा 3/4 हिस्से में बांटता है, और यहाँ पे ऑफ कोर्स आखिरी वाला डेटा है। कैन आई से जो सेकंड क्वार्टाइल है इट इज नथिंग बट मीडियन। क्वार्टाइल का मतलब एक पार्ट को 2 हिस्सों में बांट रहा है, और तो सेकंड तो 2 हिस्सों में बांटने का मतलब एक तरह का ये मीडियन रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसीलिए हमें क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 निकालना है। तो अब क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 कैसे निकालते हैं? तो लेट अस जस्ट टेक एग्जांपल। तो जो क्वार्टाइल 1 है वो एग्जांपल ले लेते हैं। हमें क्वार्टाइल डिविएशन निकालना है, मान लेते हैं 4, 9, 12, 15, 20, 23 एंड 25। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वार्टाइल निकलता है वो 1/4 जो n+1 डेटा है, n+1/4 जो टर्म है वो मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल बनेगा, ये वाली टर्म। तो जो सेकंड क्वार्टाइल बनेगा वो 2 टाइम्स n+1/4 टर्म बनेगा लॉजिकली, और जो थर्ड क्वार्टाइल बनेगा वो 3 टाइम्स n+1/4 टर्म बनेगा। आ रही बात समझ में? अब इसको देखो, कट कर दोगे तो n+1th टर्म है, ये किसके लिए हम बता रहे हैं? और टर्म्स के लिए कर रहे हैं। मान लेते हैं और टर्म्स होती तो हम इसी तरीके से करते, हालांकि इस केस में भी इवन टर्म्स में भी ऐसे होगा, बट मीडियन के हिसाब से हम समझें तो मीडियन में हमें n/2 + n/2 + 1 टर्म का एवरेज निकालते थे। इसमें कैसे निकालेंगे वो अभी हम देखेंगे। तो फिलहाल हम पहले क्वार्टाइल 1 निकालते हैं। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टर्म्स आ गई। तो 7 + 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल आ जाएगा, विच मीन्स 8/4 यानी सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म का मतलब ये हो गया 9। क्वार्टाइल 1 की वैल्यू 9 हो गई। क्वार्टाइल 2 का क्या मतलब होता है? इसका डबल 7 + 1/2th टर्म, इसका मतलब कौन सा हुआ? 8/4 यानी कि फोर्थ टर्म की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम वी आर नॉट रिक्वायर्ड, बट आई एम जस्ट सेइंग। तो फोर्थ टर्म वुड बी माय 15 व्हिच इज आल्सो द मीडियन, बट इफ आई लुक एट द
third quartile it is 3/7 plus 1 by 4th term, which means 4 into 2, which is 6th term. तो 6th term की क्या वैल्यू बन रही है? 6th term की हमारे पास 4, 5, 6, 23 वैल्यू बन रही है. समझ में आ रहा है? क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं? फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल. हमें निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन. डेविएशन क्या होता है? डेविएशन बेसिकली क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 2 का एवरेज होता है. तो क्वार्टाइल 3 कितना है? 23. क्वार्टाइल 1 कितना है? 9. उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 तो कितना बन जाएगा? 14 डिवाइडेड बाय 2. तो क्वार्टाइल डेविएशन कितना बन गया मेरा? 7. तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द क्वार्टाइल डेविएशन. तो सबसे पहले क्वार्टाइल का मतलब है जो डेटा को 1/4 हिस्से में बांटेगा. तो वो कैसे निकलेगा? n+1 टर्म बाय 4. सेकेंड क्वार्टाइल उसका डबल, थर्ड क्वार्टाइल उसका ट्रिपल. तो क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 का डिफरेंस जो होता है डिवाइड बाय 2 करेंगे तो उसको हम क्वार्टाइल डेविएशन के नाम से जानते हैं. ठीक. अब मान लेते हैं अब हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती है. अभी तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थी तो इक्वली डिवाइड हो गया. अब मान लेते हैं हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हम क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालेंगे? सो लेट अस जस्ट टेक दिस एग्जांपल. मान लेते हैं मेरे पास 3, 7, 18, 24, 27 एंड 31 ये मेरे पास टर्म्स हैं. हमें क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है. तो फर्स्ट क्वार्टाइल मेरा बनेगा n+1 by 4th टर्म, यही बनेगा. और थर्ड क्वार्टाइल मेरा बनेगा 3 into n+1 by 4th टर्म. तो n+1 by 4th टर्म, n की वैल्यू कितनी आ गई? 6. 6 + 1 कितना हो गया? 7. यानी 7/4 टर्म चाहिए मेरे को. अब 7/4 टर्म का क्या मतलब है? 7/4 टर्म का मतलब है 1 + 3/4 टर्म. यानी कि 1 + 3/4 टर्म का मतलब है 1/3 + 4th पोजीशन. क्योंकि अपने को इसी लाइन को तो हमें स्प्लिट करना है. तो इस लाइन को 1/4 टुकड़े में जो बनेगा वो कौन सा टुकड़ा होगा? फर्स्ट टर्म और 3/4 टर्म. यानी यहां पे जो पोजीशन बनेगी वो इसका फर्स्ट क्वार्टाइल बनेगा. समझ में आ रहा है? फर्स्ट क्वार्टाइल इसका ये बनेगा. तो फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी? ये क्या था? ओ, इसको बाहर निकालूं. ओके. तो फर्स्ट क्वार्टाइल जो बनेगा 1/3/4 टर्म बनेगा. तो फर्स्ट टर्म तो मेरी हो गई 3. फर्स्ट टर्म मेरी हो गई 3. लेकिन अपने को 3/4 पोजीशन चाहिए. फर्स्ट टर्म हो गई 3 प्लस 3/4 पोजीशन यानी कि फर्स्ट के बाद 1.75 पोजीशन. यहां पे जो रेड लाइन दिख रही है वहां आएगी. इसका मतलब है इन दोनों का जो गैप है वो कितना है? मान लो 4 का. हमें उस 4 में से 3/4 पोजीशन चाहिए. तो इसका मतलब है फर्स्ट प्लस 3/4 पोजीशन चाहिए. कहां से? सेकंड और फर्स्ट के बीच में. यानी कि 7 - 3. समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? इट इज एक्चुअली अ पोजीशन. सो 3/4 पोजीशन 1.75 पोजीशन will lie between 1 and 2. So first term plus 3/4 position of the second term minus first term. So this will give you 3 plus 3/4 into 3. So 4 cancels. So 6. So the first quartile की जो वैल्यू है वो 6 है. उसी तरीके से थर्ड क्वार्टाइल बनेगा 21/4 टर्म विच इज 5 + 1/4. यही बनेगा. यानी फिफ्थ टर्म 5 + 1/4 की पोजीशन कौन सी बनेगी? 3, 4, 5. यहां पे कोई पोजीशन बननी चाहिए. 27 और 31 के बीच में बनता तो मिडिल वाली पोजीशन बनती. 1/4 थोड़ी पहले बनेगी. तो इसका जो फिफ्थ टर्म बनेगा वो बनेगा 27 प्लस. अब 1/4 पोजीशन चाहिए किसके बीच में? 31 और 27 के बीच में. तो ये बनेगा मेरा 27 प्लस 1/4 ऑफ 4. तो ये मेरा बन जाएगा 28. समझ में आ रहा है? Q1 और QD आ गया. अब हमें QD निकालना है. तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2. Q3 की वैल्यू 28, इसकी वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 2. तो बनेगा 22/2 जो बनेगा 11. ये हमारा क्वार्टाइल डेविएशन बनेगा. किसमें? जिस केस में हमारे पास वैल्यूज हमारी इवन हैं. कितने होते? 4 ही होंगे.
मतलब क्वार्टाइल 3 ही, पॉइंट्स तो 3 ही, क्योंकि कोई कितना भी डेटा हो उसको जब 3 कट मारोगे तो 4 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, बस उससे तो क्या फर्क पड़ता है कितने। क्वार्टाइल का मतलब ही वही है कि क्वार्टर में डिवाइड करें। चाहे चाहे 10 करोड़ डेटा है अपने पास, तो पहला क्वार्टाइल 2.5 करोड़ होगा, सेकंड क्वार्टाइल 5वां करोड़ होगा, तीसरा क्वार्टाइल 7.5वां करोड़ होगा। अब 50 डेटा है उस हिसाब से हो जाएगा। तो क्वार्टाइल तो फिक्स ही है ना, ज्यादा कम क्वार्टाइल का कोई सीन नहीं, क्वार्टाइल तो यही है। वो तो डेटा की जो जो काउंट है वो बढ़ सकता है, कम हो सकता है, बट रिजल्ट तो n+1/4 टर्म ही निकालना है। अब n की वैल्यू 1000 है, 10,000 है, लाख है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए और ना पड़ता। ठीक है, तो ये हमारा क्वार्टाइल डिविएशन है। उसके बाद एक चीज आती है जिसको बोलते हैं मीन डिविएशन। मीन का मतलब होता है जो एवरेज सेंट्रल टेंडेंसी डेटा होता है उसको मीन बोलते हैं। उससे बचा हुआ डेटा मेरा कितनी दूरी पे है उसको हम मीन डिविएशन बोलते हैं। तो डिविएशन विद रिस्पेक्ट टू अ मीन वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा इज नोन एज मीन डिविएशन। तो मीन डिविएशन, तो मान लेते हैं हमें मीन डिविएशन निकालना है एग्जांपल के तौर पे 2, 3, 9, 11 एंड 15 मान लेते हैं, ये हमें मीन डिविएशन निकालना है। पहले तो मीन का मतलब क्या है कि हमें इसकी एवरेज निकालनी पड़ेगी। तो मीन वैल्यू बनती है 2 + 3 + 9 + 11 + 15 डिवाइडेड बाय 5। तो कितना बन जाएगा, 5 और 5 20 और 20 40, 40/5 8 8 आ गया। अब बात यह है कि अगर मेरा सेंट्रल वैल्यू 8 है तो अगर मैं 2 की बात करूं तो जो 2 है वो इससे कितनी दूरी पे है, 2 जो है इससे 6 यूनिट की दूरी पे है। 3 जो है वो उससे कितनी यूनिट की दूरी पे है, 5 यूनिट की दूरी पे। 9 जो है वो कितनी दूरी पे है, 1 यूनिट की दूरी पे है। मतलब अभी मैं मतलब समझा रहा हूं बेसिकली। उसी तरीके से जो 11 है वो कितनी दूरी पे है, 2। और जो 15 है वो 8 से कितनी दूरी पे है, 7। तो ये दूरियां हैं। दूरी अब एक्चुअली तो किताब में इसको ऐसे माइनस किया गया है, यानी कि अगर मैं 8 में से माइनस, आप किधर भी माइनस कर सकते हो, मान लेते 8 में से मैंने 2 माइनस कर दिया, डिफरेंस निकाले, मॉड किया। मॉड क्यों करते हैं हम, दूरी निकालने के लिए। प्लस पॉजिटिव आए, 8 - 3 पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। 8 - 9 नेगेटिव आएगा, दूरी उस तरफ कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। या जो मैंने यहाँ लिखा है उसके बेसिस पे उल्टा किया जा सकता है। प्लस 8 में से 11 माइनस करो मॉड, प्लस 8 में से 15 माइनस करो। क्योंकि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना, क्योंकि दूरी है, डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो जब मॉड निकालोगे तो इसका 6 बनेगा, इसका 5, इसका 1, इसका 2, इसका 7। समझ में आ रहा है, ये आ गया। कौन सा बेटा है, अच्छा अब इसका क्या करना है हमें, डिवाइडेड बाय जितनी भी टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं, 5। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 7 - 3 10 और 12, 10 और 12 22। तो 22 डिवाइडेड बाय 5। सो मीन डिविएशन ये बनेगा, समझ में आ रहा है। तो मीन डिविएशन हमने क्या किया, हमने पहले एक्सआई निकाला, ठीक है, तो या एवरेज निकाला। इसको थोड़ा स्टाइलिश अगर लिखना है, स्टाइल मार के, मतलब सिग्मा सुग्मा की लैंग्वेज में, तो हमने एक्स आई मेरा जनरल टर्म है, उसमें से मैंने एवरेज माइनस किया या एक्स बार माइनस किया, उसका मैंने मॉड निकाला, ठीक है। इसका मेरे को समेशन करना पड़ेगा, इसका मॉड का। आई की वैल्यू 1 से लेके, मतलब जो सारी टर्म्स हैं वो है एन तक मूव कर रही हैं, इसका मुझे एवरेज करना पड़ेगा एन, ठीक है। मैं थोड़ा इसको अच्छे से लिख देता हूं, एन ये एक्स है और ये मेरा एन है। ये हमारा मीन डिविएशन का फॉर्मूला है। कुछ नहीं है, मीन निकालना है, उसमें से डिफरेंस लेना है, उसको मॉड लगा के एवरेज कर देने का, वो हमारा मीन डिविएशन बन जाएगा। आ रही बात समझ में। जैसे मीन डिविएशन है ऐसे स्टैंडर्ड डिविएशन भी होता है। जैसे अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन था, उसमें हम क्या कर रहे थे,
अंडर रूट प्रोडक्ट करके अंडर रूट कर रहे थे। इसके अंदर अगर हमें स्टैंडर्ड डिविएशन सॉरी क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड डिविएशन, वो वेरिएंस होता है। अगर मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो जो ये पॉजिटिव मॉड लगा के कर रहे थे ना, वो मॉड नहीं लगाना, उसको पॉजिटिव करना है, xi माइनस x बार का होल स्क्वायर बाय n का अंडर रूट। ये हमारा फीलिंग तो आनी चाहिए सारी, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन बनेगा। यानी अगर हम इसी एग्जाम्पल को ले लें, तो मान लेते हैं हमें स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है 2, 5, 7, 10, 13 एंड 17 मान लेते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना। तो सबसे पहले इसका xi निकालेंगे, x बार निकालेंगे। x बार कैसे बनेगा, 2 + 5 + 7 + 10 + 13 + 17 डिवाइडेड बाय 6। तो ये कितना बन जाएगा, 30, 10, 40 और 14, 54, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 6, 9 आ जाएगा। अब हमें ये निकालना है, अब निकालना है 9 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 10 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 13 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 17 का होल स्क्वायर। इसको हमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ टर्म से विच इज 6, उसका हमें निकालना है अंडर रूट। तो ये कितना बन जाएगा, 9 - 2 7, 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 64, यही बनेगा डिवाइडेड बाय 6 का अंडर रूट। इसका सम कितना आ रहा है, 150 डिवाइडेड बाय 6 which is under root of 25 which is 5। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। अंडर रूट हटा दोगे तो हमारा काम चल जाएगा, है इसमें 4 लिखना। हाँ हाँ ठीक है। यही तो है, -2 कहां से आ रहा है, -2 क्या 7 माइनस क्या 4, 7 - 2, 9 - 7 रह गया। ये रह गया, ठीक है। इसी का एक और रिजल्ट आता है, अगर ऐसे नहीं करें तो इसका एक और रिजल्ट आता है ना, बस इसका नया रिजल्ट लिख के छोड़ दूंगा, वही गया वैसे तो। बुक ले लो तो कोई बात नहीं। इसका एक और फॉर्मूला बनता है स्टैंडर्ड डिविएशन का, ये समेशन ऑफ xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस समेशन xi डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। मतलब ये कि मान लो हम बारी बारी माइनस ना करना चाहें, अगर लंबी टर्म है तो समेशन xi का स्क्वायर, यानी जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं, हाँ जो हमें वैल्यू उनका स्क्वायर कर दो और फिर उसका एवरेज निकाल दो। इस समेशन xi का स्क्वायर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि कई बार मान लो आपको
ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन टिल n स्क्वायर, तो हमें इसका फॉर्मूला पता होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होता है, इसलिए ये आता है। इसकी वैल्यू डिवाइड बाय n करोगे तो एक वैल्यू आ जाएगी। ये वाला जो समेशन n है, समेशन xi, मान लेते हैं ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इस टाइप से कोई वैल्यू होती तो इसका सम बनता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, इसलिए इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। सो समटाइम्स यू नो दिस इज का स्क्वायर है, दूसरे में हाँ रुक जा एक मिनट, बैठ जा। अच्छा ठीक है, दिस टेक्स केयर ऑफ योर बुक टू। किसकी है? तेरी कहाँ है ये? मारी है ना ये, किसकी है? तेरी कहाँ? तेरी है। हाँ जी, ऑनलाइन एनी क्वेश्चंस? नो सर। नमस्कार। क्या सब करना है? हाँ जी पूजा, एनी क्वेश्चन क्वेरीज? नहीं सर, बस हो गया, आ गया समझ में। चलो ठीक, ठीक है। एनीथिंग एल्स एनीबॉडी?